Hello my dear students, myself Gaurav Kumar. I hope all of you are doing great, healthy and fit. So today let's start with a new topic for class 12th history, that is kinship, caste and class, chapter number 3. In this chapter we will discuss about early societies between 600 BCE to 600 CE. This one is a part 1 video. Remaining part will be uploaded soon. So let's start. At the end of the lesson, students will be able to understand the issues in social history, explain the strategies of textual analysis and their use in reconstruct social history, examine the varied dimension explored by historians in order to understand dynamic approach of Mahabharata. Yes, Mahabharata will be in the main focus in this chapter. Students will be able to analyze social norms in order to understand the perspectives of society given in the scriptures of ancient India. In the previous chapter, we saw that there were several changes in the economic and political life between 600 BC and 600 CE. Some of these changes influenced societies. The literature हमारा होता है, the historians use these literatures to understand the social differences, because some of these texts lays down norms of social behaviors. In this chapter, we will focus on Mahabharata. It was composed over a period of 1000 years, like 500 BC onwards. The central story is about two warring cousins. The text also contains sections laying down norms of social behavior for various social groups. Let's talk about critical edition of Mahabharata under the leadership of V.S. Suktankar. The team collected all variation of Mahabharata from different parts of the country, all the manuscripts, and compared them. Then the team published the critical edition after almost 47 years and in 13,000 pages. Two things were very important. There were several common elements in the Sanskrit version of the story, evident in manuscripts found all over the subcontinent. Second, it was also evident that there were enormous regional variations in the way in which the text had been transmitted over the centuries. These texts, they has a face value for the historians to construct the social histories of that time. Now let's talk about kinship. Kinship का हिंदी में मतलब होता है बंधुता या बंधुत्व. Families are usually part of a larger network called relatives, संबंधी. सबको मिलाकर एक बड़ा बंधुत्व या किनफॉक हमारा बनता है, जिसमें बहुत सारी सोसाइटी अलग अलग नॉर्म्स को फॉलो करती हैं. जैसे कुछ सोसाइटी में अपने कजन्स लाइक चाचा के बच्चे, मौसी, मामा के बच्चे, इनको भी ब्लड रिलेशन का हिस्सा माना जाता है, लार्जर पार्ट ऑफ दिस किनफॉक. लेकिन कुछ सोसाइटी में इनको ऐसा नहीं माना जाता. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आस्पेक्ट इज पेट्रिलिनी. हिंदी में बोलते हैं पितृवंश या पितृसत्तात्मक. पितृवंश इज मोर एप्रोप्रिएट टर्म. पितृवंश. पेट्रिलिनी का मतलब होता है ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन, ग्रैंडसन एंड सो ऑन. In the central line of this Mahabharata, this aspect of kinship has been changed. अभी हमने बात की कि हम जो कजन्स हैं उनको भी ब्लड रिलेशन में मानते हैं, लेकिन महाभारत की जो सेंट्रल स्टोरी है वो बात कर रही है दो भाइयों के कजन के आपस में लड़ने के लिए टू सक्सीडेड ओवर थ्रोन. ठीक है, तो कैन वी आइडेंटिफाई द पॉइंट्स व्हेन दिस किंगशिप रिलेशंस चेंज्ड? आफ्टर विक्ट्री, Pandavas also proclaimed patrilineal succession to the throne. It was another example of like patrilineal succession कि फादर की जो संपत्ति है उस पर बच्चों का अधिकार है, मेल मेंबर का अधिकार है, including all the resources, including the throne. Sometimes brother and other relatives also proclaim the same. अगर बच्चा नहीं है तो भाई या अदर रिलेटिव जो है वो थ्रोन पर या रिसोर्सेज पर पेट्रिलिनी के अंदर
अपना अधिकार जो है वो साबित करेंगे। बहुत ही एक्सेप्शनल केस में हमारे पास एक एग्जांपल आता है प्रभावती गुप्त का, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था इन दी लैंड ग्रांट्स। शी वाज क्वीन ऑफ वाकाटक एम्पायर। डॉटर्स दे हैड नो क्लेम्स ओवर द रिसोर्सेज ऑफ हाउस। घर के किसी भी रिसोर्स पर उनका कोई अधिकार नहीं होगा। उनकी शादी घर से बाहर यानी कि अपने किन, अपनी जो हमारी जो जाति है उसे बाहर करवाना सबसे ज्यादा डिजायरेबल था। इसको हम बोलते हैं एक्सोगेमी, वो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। कन्यादान, शादी में कन्या का दान करना, इट वाज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ अ फादर, रिलीजियस ड्यूटी ऑफ फादर। अब धीरे धीरे जब नए टाउन्स इमर्ज होते गए और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोशल नॉर्म्स जो बनते चले गए, तो अब इन सारे नियमों पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आने लगा। तो इन नियमों को सोसाइटी में दोबारा से एस्टेब्लिश करने के लिए हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र की जो है रचना की गई थी। धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र, एक एग्जांपल इसका हमारे पास इस टाइम पे लिखी गई जो मनुस्मृति का भी एग्जांपल हमारे पास आता है। तो इन धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र के अंदर सोशल नॉर्म्स जो थे, सोशल बिहेवियर जो थे, वो लिख दिए गए थे कि आपको सोसाइटी में रहने के लिए किन किन नियमों का पालन करना होगा। मनुस्मृति इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो सोशल नॉर्म्स के बारे में डिटेल में लिखता है। इट वॉज रिटन बाई मनु। इट वॉज कंपाइल्ड बिटवीन 200 BC to 200 CE। Now let's talk about types of marriage। उस टाइम पर जितनी भी तरह की शादियां जो होती थी उसको मुख्य रूप से हम 4 जो है कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। उनके जो टाइप हैं, प्रकार हैं। पहला एंडोगेमी, मैरिज विद इन द यूनिट इन द सेंस दैट इज अ किन, जो अपनी बंधुत्व या जो अपना फैमिली है अंदर शादी करना इज नोन एज एंडोगेमी। नेक्स्ट वन इज एक्सोगेमी। लास्ट स्लाइड में भी हमने डिस्कस किया था कि एक लड़की की अपनी किन से बाहर शादी करना इंपॉर्टेंट माना जाता था, तो दैट काइंड ऑफ मैरिज नोन एज एक्सोगेमी। देन वी हैव पॉलीगैमी। पॉलीगैमी इज अ मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स, ठीक है। Then we have another example of polyandry. Polyandry is opposite to polygamy. In polyandry, a woman have several husbands. You can take an example from Mahabharata of Draupadi and Pandavas. Now let's talk about, according to the Dharma Sutras, forms of marriage. They actually mention about 8 forms of marriage. ठीक है। In these 8 forms of marriage, जो शुरू की 4 forms थी उनको बहुत अच्छा माना गया था, और जो बाद की या आखिरी 4 हम बोल रहे हैं 8 में से, उनको जो है स्वीकार नहीं किया गया और उनको एक खराब दर्जे में रखा गया। ये माना जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा कि जो ये आखिरी की लास्ट की जो 4 फॉर्म्स हैं शादी की, मैरिज की, जिनको जो है कंडम कर दिया गया था, ये उन सोशल ग्रुप द्वारा जो है फॉलो की जाती थी जो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स या धर्मसूत्र में दिए गए जो नियम कायदे कानून को नहीं मानते थे और उनसे अलग तरह से अपने सोशल नॉर्म्स को या अपने सोशल बिहेवियर को चलाते थे। तो चलिए अब हम बात करते हैं गोत्र ऑफ वुमेन। लगभग 1000 BCE के बाद से लोगों का डिवीजन जो था वो गोत्र के रूप में किया जाने लगा था। फीमेल के लिए जो नॉर्म्स थे इन फॉर द गोत्रास, उनके लिए क्या था कि 2 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी थी उनके लिए। सबसे पहला कि आफ्टर मैरिज दे हैव टू लेफ्ट देयर फादर गोत्र एंड दे हैव टू अडॉप्ट द हस्बैंड गोत्र। एंड सेकेंड थिंग इज दैट मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्र कुड नॉट मैरी। तो अगेन यहाँ पर बात क्या आ रही है, एक्सोगेमी की। आप अपनी किन या अपने गोत्र के अंदर शादी नहीं करेंगे, आप बाहर शादी करेंगे। यानी कि अगेन एंड अगेन देयर इज फोकस ऑन एक्सोगेमी टाइप ऑफ मैरिज। बट वी हैव सम एक्सेप्शन अगेन। द वुमेन मैरिड टू सातवाहना रूलर्स, दे वर फ्रॉम गौतम एंड वशिष्ठ गोत्र। देखो जो ये गोत्र था ना, each gotra was named after a Vedic saint, and all those who belonged to the same gotra were regarded as his descendants. ठीक है, जैसे इसमें अब हम बात कर रहे हैं गौतम जो है ऋषि थे और वशिष्ठ भी जो है ऋषि थे, तो उन लोगों के जो हमने गोत्र बना दिए थे उसी के बेस पर गोत्र जो है डिसाइड किए जाते थे। अब सातवाहना के अंदर हम क्या देखते हैं कि वहां की जो ज्यादातर रूलर है वे गौतम और वशिष्ठ गोत्र के हैं। जो सातवाहना रूलर थे ना, उनकी जो फीमेल थी, इसके हमारे पास ऐसे एग्जांपल आते हैं दैट दे मैरी विद इन द सेम गोत्रा। इट मींस इट वाज नॉट एक्सोगेमी, इट वाज एंडोगेमी टाइप ऑफ मैरिज।
और जो ये सेम गोत्र में या एंडोगेमी शादी की हम बात कर रहे हैं, साउथ इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि ये साउथ इंडिया की सोसाइटी में प्रचलन में था अपनी ही किन के अंदर या एंडोगेमी टाइप ऑफ मैरिज। अब यहाँ पर जो हम दूसरी बात डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे कि सातवाना रूलर्स दे वर मेट्रोमिनिक। अब मेट्रोमिनिक का मतलब होता है कि द रूलर्स दे यूज देयर मदर्स नेम इन देयर ओन नेम। इसके कुछ एग्जांपल हमारे पास आते हैं। राजा गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी, गौतमी पुत्र, अगेन गौतमी पुत्र मतलब गौतमी का बच्चा, गौतमी का पुत्र, तो श्री शातकर्णी एंड देन वशिष्ठ पुत्र। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल क्या रहे हैं कि ये अपनी मदर का जो नाम है वो अपने नाम के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना नाम अपनी मदर के नाम से ड्राइव किया, तो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट दे आर मेट्रोमिनिक्स। फाइन, बट यहाँ पर ये चीज नोटिस करने की जरूरत है, भले ही मेट्रोमिनिक्स हो या मदर का जो सम्मान है, अगर हम यहाँ पे बात करें वर मदर्स इंपॉर्टेंट, तो ये चीज देख के हम कह सकते हैं यस मदर्स वर इंपॉर्टेंट, लेकिन अंतिम रूप से हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो थ्रोन का सक्सेशन है वो मेट्रोमिनिक था। नहीं, इट वॉज पैट्रीलिनियन अगेन, मतलब कि अगर आप थ्रोन पर सक्सेशन करेंगे, आप राजा बनने की बात करेंगे, तो आप जो रिसोर्सेस पर जो क्लेम कर रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन पैट्रीलिनियन सोसाइटी ओनली। तो आज की क्लास में हम यहीं तक के टॉपिक कवर करेंगे। यहाँ पर हमने जो फर्स्ट पार्ट एक तरह से आप कह सकते हैं किनशिप को कवर किया है। अगली क्लास में वी विल गो फर्दर एंड वी विल टॉक अबाउट कास्ट एंड क्लास। थैंक यू।